PSTV Urdu پیغام حق The Message of Truth. بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور شکر و احسان ہے کہ آج ہم تمام لوگ اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عید قربہ کی یہ سعادتیں ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرما رہا ہے. دعا ہے رب العالمین سے، الہ العالمین یہ عظیم سعادتیں ہمیں بار بار نصیب فرما، آمین. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس میں مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام مبعوث کیے گئے اس دنیا کے اندر، وہ سب کے سب آپ ہی کے نسل سے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ رب کائنات نے تو آپ کو اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ آپ کے بعد جو بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وہ سب کے سب آپ ہی کے خاندان میں سے انبیاء و رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی. اتنا ہی نہیں بلکہ رب کائنات نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کو اتنا عظیم اور اتنا بلند مقام عطا کیا کہ رب کائنات نے آپ کو اپنا خلیل، اپنا جگری دوست قرار دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا عظیم جو مقام عطا کیا، اس کے وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر آخر تک ابتلا و آزمائش میں گزری. رب کائنات نے آپ کو ہر طرح کے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور آپ ہر آزمائش، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. انہیں عظیم آزمائش اور امتحانات میں سے ایک عظیم آزمائش، ایک عظیم امتحان ان کے جگر گوشے نور نظر ایک لوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے تھی. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ تھی. بڑی گریہ وزاری کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد کی دولت سے نوازا. لیکن اس اولاد کو عطا کرنے کے بعد اس اولاد کے تعلق سے کئی امتحانات لیے. ابھی آپ کی اولاد دودھ پینے کی حالت میں تھی. رب کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیوی اور اس دودھ پیتے بچے کو مکہ کے بیاب و گیاہ چٹیل میدان میں چھوڑاؤ، جہاں دور دور تک آبادی نام کی کوئی چیز نہ تھی. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے سامنے سرخم تسلیم کرتے ہیں. پھر جب آپ کی وہ اولاد اس قابل ہوئی کہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنی اس اولاد کو اپنے ہاتھوں سے میری راہ میں قربان کر دو. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. خواب کا اظہار
अपने बेटे के सामने करते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझको अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं, बोल बेटा तेरी राय क्या है। नेक और बुद्धवार बेटे ने फौरन कहा, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि अब्बू जान अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप इसे कबूल करें, आप इस हुक्म के सामने सरेखम तस्लीम करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या जज्बा था बाप बेटे का। एक बाप अल्लाह के एक हुक्म पर अपनी एक लौटी औलाद को, जो काफी गिरिया वजारी के बाद, काफी दुआओं के बाद मिली है, अल्लाह के एक हुक्म पर उस औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार है, और एक औलाद खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप कुछ देर के लिए अपने आप को सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम पर रख कर सोचें कि अगर आपको यह हुक्म मिल जाए, आपकी एक लौटी औलाद हो जो काफी गिरिया वजारी के बाद, काफी दुआओं के बाद मिली हो, और अल्लाह का हुक्म हो जाए कि आप उस औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, क्या गुजरेगा आपके दिल पर। लेकिन अल्लाह का फैसला था, अल्लाह के फैसले के सामने हमें सरे खम तस्लीम करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरीक़ेकार को सामने रखते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिना की तरफ लेकर बढ़ते हैं, जहां जमरात के करीब पहुंचकर हाजी लोग जहां शैतान को पत्थर मारते हैं, वहां पेशानी के बल लिटा देते हैं, पेशानी के बल लिटा देते हैं कि कहीं औलाद का चेहरा देखने के बाद औलाद की मोहब्बत दिल में गालिब ना आ जाए, चेहरे के बल लिटा देते हैं। तब तक ऊपर से आवाज आती है, या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया, ऐ इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखलाया। फिर परवरदिगार आलम ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह पर एक मेंढा भेजा, जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बान किया। ये है पस मंजर इस कुर्बानी का जो आज हम अंजाम देने जा रहे हैं। रब्बे कायनात को इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह अमल इस कदर पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए इसको जारी व सारी फरमा दिया। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, ईद कुर्बा की ये तारीखी अय्याम साल में एक बार और हमारी जिंदगियों में बार बार आते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस बात की जरूरत महसूस करते हैं कि इसकी हकीकत को जाने और समझें कि आखिर ईद कुर्बा की तारीखी अय्याम साल में एक बार और हमारी जिंदगियों में बार बार क्यों आते हैं। क्या पैगाम, क्या संदेश, क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं। आखिर क्या खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को क़यामत तक के लिए यादगार करार दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतारो कुर्बानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का जज्बा ही था, जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना घर, वतन, दौलत तो छोड़ी ही, बादशाह वक्त से भी बगावत किया, फिर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अपने बीवी और दूध पीते बच्चे को बेआब हो गया छठे मैदान में तने तनहा छोड़ आए और खुद आग के दहकते अंगारों में डाले गए, और सिर्फ अपनी ही जान नहीं बल्कि अपने लख्ते जिगर नूरे नजर की कुर्बानी के आखिरी हुक्म की भी तामील फरमाई। इखलास व सच्चाई और इसारो कुर्बानी का ये एक ऐसा बेनजीर वाकया है जिसकी मिसाल आज तक कोई कौम पेश नहीं कर सकती है। यही वजह है कि रब्बे कायनात ने इस अजीम तरीन अमल को क़यामत तक के लिए यादगार करार दिया, एक फरीजा की हैसियत दे दी, ताकि ईद कुर्बान के तारीखी अय्याम पर नजर रखते हुए एक बंदे मोमिन भी अपने दिल के अंदर वही जज्बा और वही हौसला पैदा करे जो जज्बा दीन के लिए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर थी, और अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दे जो उसे मयस्सर हो। ईद कुर्बान मनाने का एक अजीम मकसद ये भी है कि जिस तरीके से इस ईद कुर्बा की असल जो ये है कि कुर्बानी जब हम अपने जानवरों की करते हैं तो कुर्बानी की असल रूह ये है कि हम अपने अंदर ईमान और इस्लाम और मोहब्बत वफादारी का वही जज्बा अपने अंदर पैदा करें जिसका मुजाहिरा सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी भर किया।
अगर महज हमने अपने जानवर की गर्दनों पर छुरी फेर दिया और हमारा दिल कुर्बानी की असल इस रूह से अगर हमारा दिल खाली रहा तो मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों याद रखें हमारी इन कुर्बानियों का कोई खास फायदा नहीं होगा। मगर अफसोस हम मुसलमानों ने इस कुर्बानी को भी एक रस्म बना दिया है। हम जानवर खरीदते हैं, उसे कुर्बान कर देते हैं, लेकिन इस कुर्बानी का मकसद क्या है, तकाजा क्या है, इसको हम भूल जाते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, ये ईद कुर्बा हमें इस बात का मुतालबा करता है, इस बात का तकाजा करता है, इस बात का हमें पैगाम देता है। हमारे दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे माल की शक्ल में है, चाहे जान की शक्ल में है, चाहे जायदाद की शक्ल में, हकीकत में वो चीजें हमारी नहीं है, बल्कि वो सारी की सारी चीजें रब्बे कायनात की है। और जिस तरीके से आज उस रब के हुक्म पर हम दिए हुए अपने माल की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अगर उस अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के दीन के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी पेश करना पड़े, अपनी जायदाद की कुर्बानी पेश करना पड़े, अपने माल असबाब औलाद की कुर्बानी पेश करना चाहिए, तो जर्रा बराबर हमारे पेशानी पर सिलवट नहीं आना चाहिए, जर्रा बराबर हमारे दिलों में मलाल नहीं होना चाहिए। ये जज्बा, ये पैगाम है ईद कुर्बा का। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इन कुर्बानियों से क्या मतलब है? न गोश्त मतलूब है, न खून मतलूब है, तक़वा मकसूद है। आप गौर करें, हम मुसलमान अपना पहला इस्लामी त्योहार ईद उल फित्र मनाते हैं। एक महीने के रोजे के फरागत के बाद मकसद क्या है? अल्लाह ने रोजों का मकसद बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजों का मकसद यह है कि हमारे दिल में तक़वा पैदा हो जाए। दूसरा इस्लामी त्योहार हम ईद उल अज़हा मना रहे हैं, इसका मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे उन कुर्बानियों के न तो गोश्त पहुंचते हैं, न खून पहुंचता है, अल्लाह को क्या पहुंचता है? तक़वा पहुंचता है। गौर करें, तक़वा है क्या चीज? कि हमारा जो दो अजीम इस्लामी त्योहार है उसका मकसद है तक़वा। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, तक़वा इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा डर, ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि एक इंसान अल्लाह के हुक्म पर हराम चीजों के करीब जाना तो दूर की बात है, अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हलाल चीजों का भी छोड़ दे। यह है तक़वा। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, ईद कुर्बा हमें इस बात का भी पैगाम देता है कि हमें अपने जज्बात को, अपने ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कुचलना होगा, कुर्बान करना होगा। दुनिया का कौन से ऐसे वालिदैन हैं, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जिनको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती है? दुनिया के हर वालिदैन के नजर में उसकी औलाद हर दिल अजीज हुआ करती है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में यह साबित किया है कि अगर उस हर दिल अजीज औलाद की भी कुर्बानी पेश करना पड़े अल्लाह के हुक्म पर, तो हमारे दिल में जर्रा बराबर भी मलाल और हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अपना घर, अपना वतन अजीज नहीं है? हर इंसान को अपना घर, अपना वतन अजीज होता है। दुनिया का कोई भी इंसान अपना घर छोड़कर बियाबो गया चटियल मैदान में जिंदगी गुजारना गवारा नहीं करता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ने हमें सबक दिया कि लोगों, अगर अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अगर तुम्हें अपना वतन, अपना घर, अपना मुल्क छोड़ना पड़े तो इसके लिए तुम हमा वक्त तैयार रहना। ईद कुर्बा का सबसे अजीब मकसद यह है, आज हम मुसलमान अपने जानवरों की कुर्बानी दूसरों से करवाते हैं। छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती। आप इसको याद करें। कुर्बानी एक जज्बे का नाम है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह कर देने का नाम नहीं है, कुर्बानी एक जज्बे का नाम है, जो जज्बा लेकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी गुजरी है। एक इंसान जब अपने हाथों से अपने जानवर की कुर्बानी पेश करता है तो उसके दिल में यह जज्बा मोजज़न होता है कि परवरदिगार आलम, आज तेरे हुक्म पर तेरे दिए हुए इस माल की कुर्बानी पेश कर रहा हूं। हमारे जिस्म के अंदर जो जान है, परवरदिगार आलम, ये जान भी तेरी दी हुई है। अगर इस जान को भी तेरी राह में कुर्बान करना पड़े तो हम इसके लिए हमा वक्त तैयार हैं। ये जज्बा कब हमारे अंदर पैदा होगा? जब हम खुद अपने हाथों से अपने जानवर की कुर्बानी पेश करेंगे। बल्कि हमें तो औरतों को भी इस पर उभारना चाहिए।
औरतों से भी कुर्बानी हमें करानी चाहिए ताकि उनके अंदर भी ये हौसला और ये जज्बा पैदा हो सके। जब हम अपनी जानवर की कुर्बानी खुद पेश नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अपनी और अपने औलाद की कुर्बानी कैसे पेश कर सकते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, कुर्बानी का एक और अजीम मकसद और अजीम पैगाम यह भी है कि जिस तरीके से आज हम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए अल्लाह के दिए हुए माल की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अगर वाकई हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करने का हमारे दिलों में जज्बा है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए हमारे दिलों के अंदर जो एक दूसरे के तई बुग़्ज़ और हसद भरी पड़ी है उसको कुर्बान कर दें, अपनी आना और अपने अहंकार को मिटा दें। अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमारे अंदर जो हसद, कीना, कपट एक दूसरे के तई भरा हुआ है इसको कुर्बान करें। एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती करने के जो जज्बात है हमारे दिलों के अंदर, अल्लाह की रजा के लिए सबसे पहले इसको कुर्बान करें। अल्लाह को यह मतलूब है, इन कुर्बानियों का पैगाम ये है। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, इन्हीं चंद बातों पर इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इलाहुल आलमीन हम मुसलमानों को कुर्बानी का जो असल मकसद है उसको समझने की तौफीक अता फरमा और रब की रजा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए हर उस चीज को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा जो रब को मतलूब हो। इलाहुल आलमीन हम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख। हम में से जो लोग बीमार हैं इलाहुल आलमीन तो उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम में से जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग मकरूज हैं इलाहुल आलमीन तो उनकी कर्ज की अदायगी की कोई हलाल जरिया निकाल दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की दौलत से मालामाल हैं, इलाहुल आलमीन तो उनकी औलाद को नेक बना, सालिह बना, नमाजी बना, दीन से करीब होने की तौफीक बख्श। और हम में से जो लोग औलाद की अजीम दौलत से महरूम हैं इलाहुल आलमीन तो उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी परेशान हाल हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, इलाहुल आलमीन तो उन तमाम मुसलमानों को जालिमों के जुल्म से निजात अता फरमा। जालिमों को हिदायत दे दे या उन्हें हलाक व बर्बाद कर दे। इलाहुल आलमीन हम मुसलमानों को अपना एक एक काम किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमा और खुलूस लिल्लाहियत के साथ अपनी इबादतों को अंजाम देने की तौफीक बख्श और रियाकारी और दिखावा से महफूज रख। जब तक हम मुसलमानों को इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावा।